Hello students, कैसे आप सब लोग? I hope everybody is fine. And today we'll start with the integration substitution method. As you know that we have completed all our mock test series. अगर आपने नहीं किया है तो please do that because that is very much important for your exams. ठीक है? Now we'll start with the revision of all the topics one by one. एक बार revision भी जरूरी है सब topics का. शुरू करेंगे उसको. First of all, I'm starting with the integration with the substitution method. And before substitution method, I will start with like basics explanation also कि integration होता क्या. Suppose I have the function x square by 2. Suppose this I have. And if I ask you that find its derivative, then how do you find derivative? Everybody knows how to find out differentiation, how to do differentiation, how to find out derivative. तो आप कैसे निकालते हैं? You do that यहाँ पे जो है you write d by dx of this और फिर आप कैसे निकालते हैं? You just do derivative of this will be power will come in the front और एक power less होके variable will be like this 2x. So नीचे already 2 we have, that was the constant, so that will remain same. तो आपका आंसर क्या आया? आपका आंसर आया कुछ इस तरीके से. So this we call as what? Differentiation. If you are going from left to right, then we are saying that this is nothing but the derivative, or we can say this is nothing but our differentiation. This is our differentiation, or we can say x is nothing but the derivative of x square by 2. But if I ask you that go from right to left, then what we call? We call it antiderivative. We call it antiderivative. जैसे आपने लोग देखा ना कि अगर आपको कभी स्नेक ने काट लिया तो आपको डोज मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? एंटीडोट बोलते हैं. तो एक तो पॉइजन हो गया. पॉइजन का जो जिससे हम बचते हैं, पॉइजन से जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीडोट. लाइकवाइज वी हैव द एंटीडेरिवेटिव. ठीक है. सो वी कैन से दैट antiderivative of x will be x square by 2. And how do we define that? उसके लिए what we need to do? Let's suppose अब उसमें क्या करना है? Suppose I'm adding here c also. ठीक है. Because जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, this is nothing but the constant value. तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाना है. तो if you add नहीं ये करना है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए. Now, how will you find out its antiderivative? तब आपने क्या करना होता है? We have taken d by dx of x square by 2 plus c, and what do we need to do here? आंसर क्या था आपका? आपका आंसर आया था x. तो हम लिखेंगे कैसे इसको? Just you need to shift this d by dx on the right hand side, and when you will shift this on the right hand side, this will convert to the sign of integral with dx. और इधर आ जाएगा आपके पास क्या? x square by 2 will remain same. So this process of antiderivative we call this as integration. Antiderivative भी बोल सकते हैं, we can call it integral also. Integral or antiderivative. So this is process of what? This process we call as integration. तो आपने क्या किया कि जो भी आपका differentiation था उस d by dx को you shift on the right hand side, that will convert to the integral sign as well as the dx. So this process we call as integration. Fine. If I talk about the general terms, suppose you have 5x and some constant is there. So what you get after finding its derivative? D by dx, suppose I am getting the function fx. ठीक है. Now shift here this on this side, so I'll get 5x plus we can say k or we can say c. कई जगह आपको c मिलेगा, कई जगह आपको k मिलेगा. This doesn't make any difference. तो ये जो आप shift करेंगे तो that will convert to the integral sign fx और साथ में आ जाएगा dx, and this we call as the process of integration. ठीक है. अब इसमें x क्या होता है, dx क्या होता है? This is your constant of integration. ये सब आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, just recap है. This we call as integration. This is your integral sign. इवन ना बुक्स में कई बार आपको MCQ में भी एक पूरा स्टेटमेंट देके वो पूछ लेता है, what do you mean by this? ठीक है. Then this is what? Variable of integration. The x is what? Variable of integration. Means the variable with which you are integrating your function. Fine. This is what? X what? It is the primitive of x. This we call as primitive of x. ठीक है? Sorry, this is primitive of your function. क्लियर. तो ये प्रोसेस है हमारे पास जो कि इंटीग्रेशन का प्रोसेस है कि नॉर्मली प्रोसेस इंटीग्रल होता क्या है. एंड दिस वी कैन कॉल इट एज
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन ऑल्सो, कि यही प्रोसेस आपके पास यूज होता है और हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। इसके बाद हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आते हैं जो आप लोगों को आते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं व्हाट आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? पॉलिनोमियल्स की। इफ यू हैव पॉलिनोमियल विद इंटीग्रल साइन एंड dx देन व्हाट विल बी द आंसर? आपने क्या करना है, जो पावर होती है उसको आपने एक बढ़ा देना है और नीचे ले आना है +1 में। ठीक है, क्या होगा आपके पास? पावर आपके पास एक बढ़ जाएगी। सपोज यू हैव 2, तो आंसर में क्या आएगा? 2 + 1 3, और वही सेम चीज n + 1 / 2 नीचे आ जाएगा और साथ में लगेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है कि इंटीग्रल के हर क्वेश्चन में लगेगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, हियर वी विल टॉक अबाउट द इनडेफिनिट। डेफिनेट की बात बाद में करेंगे। दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरी चीज, दिस वाज आवर पॉलिनोमियल फंक्शंस। दूसरा बात करते हैं इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कहता है कि जो भी फंक्शन है वो सेम रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। e⁻x का इंटीग्रल विल रिमेन सेम। थर्ड वन, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। आंसर ऑफ दिस विल बी log x + c। I hope everybody knows these formulas. We are just recapping. Then next is integral of a⁻x dx। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे e है, यहाँ पे a है। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज अबाउट दैट। आंसर विल बी a⁻x / log a। अब आप बोलोगे कि मैम आपने यहाँ पे तो सीधा सीधा लिख दिया था, नीचे तो log a लिखा, इधर तो log e नहीं लिखा। लो, अगर मैं लिख भी दूं तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज log e का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, आप इसको मत लिखिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस। So this was polynomial functions, exponential functions, both are, and this one is the logarithmic function. Next बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। डेरिवेटिव ऑफ sin x, सॉरी इंटीग्रल ऑफ sin x का बात कर लेते हैं सबसे पहले। व्हाट इज दैट? अगर आप देखिए जो अगर आपको डेरिवेटिव आता है ना, तो उसका जो आंसर आता है वही ऑपोजिट उसका इंटीग्रल का होता है। तो जैसे sin किसका डेरिवेटिव होता है? माइनस कॉस का होता है। नहीं, हाँ, माइनस कॉस का इंटीग्रल होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रल sin विल बी माइनस cos x + c। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रल ऑफ cos x। cos x की अगर बात करें तो आंसर इसका कितना आएगा? cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है? sin x का। तो sin x + c विल बी द इंटीग्रल ऑफ दिस sec² x dx, और इसका क्या हो जाएगा? दिस विल बी tan x + c। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है किसका? cosec² x, दिस इज इक्वल टू dx इक्वल टू, अब जितने भी CO वाले फंक्शन से सबके साथ में क्या आएगा? सबके साथ में आएगा माइनस साइन। ठीक है, then next we have secant x tan x dx, और ये किसका होता है? this is what? secant x + c। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। this was secant x + c, and next we will have cosecant x into cot x। this is of minus cosecant x dx, sorry cosecant x + c। तो इतने आप याद रखिए, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। yes, you can remember the inverse also। इनवर्स भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आप कर लेते हैं इसको। कितना? सपोज आई एम हैविंग इंटीग्रल ऑफ 1 - दिस। अब ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? इफ यू रिमेम्बर, ये होता है किसका? साइन इनवर्स x का। और अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दूं, सपोज दिस इज प्लस, तो ये साइन इनवर्स का हो गया। सपोज आई एम टेकिंग माइनस साइन, तो वो किसका हो जाएगा? फिर वो हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इंटीग्रल इफ यू हैव 1 + x² देन इट विल ऑफ, प्लस का है तो tan इनवर्स x, और माइनस का है तो इट विल बी ऑफ cot इनवर्स x। ठीक है, चलिए, और प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x ऑफ √x² - 1, ये किस किस का होगा? प्लस का है तो secant इनवर्स x, और माइनस का है तो cosecant इनवर्स x dx + x + c। तो इतना आप याद रखिए, बाकी हम सीखेंगे अब कि ये हमारा बेसिक है। अगर आपको ये आता है देन यू कैन डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको लास्ट, कि जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, जैसे कि कांस्टेंट अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, डेरिवेटिव में कांस्टेंट इन आंसर विल बी 0, बट यहाँ पे अगर है कांस्टेंट dx के साथ देन इट विल नेवर बी 0। तो k बाहर आ जाता है बिकॉज दैट विल बी कांस्टेंट टर्म, और dx का आंसर हमेशा आपके पास आएगा k × x + c। ठीक है, सो दिस इज योर कांस्टेंट। तो याद रखिए कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का आंसर कभी 0 नहीं होता। यू हैव दैट ओनली इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन।
तो ये चीजें बेसिक अगर आपको पता है देन यू कैन इजीली फाइंड आउट योर इंटीग्रेशन फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहला फॉर्म जो आता है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म f डैश x डिवाइड बाय fx। मतलब अब देखो सब्स्टिट्यूशन कहता है कि आपने एक फंक्शन उठाना है और उसका डेरिवेटिव ढूंढना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता क्या है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं आपको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है। कि इंटीग्रल, अब आपके पास ना fx हो सकता है कि इसका कुछ डेरिवेटिव आपके पास इन मल्टीप्लिकेशन प्रेजेंट हो सकता है, और इट कैन बी यू हैव द फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ना नीचे प्रेजेंट हो, ठीक है। और वी कैन हैव दैट इस तरह का अगर फॉर्म है आपके पास, या हो सकता है यू हैव fx टू द पावर n समथिंग और देन यू हैव f डैश, ठीक है। तो इफ यू हैव कि लाइक fx आपके पास एक फंक्शन है एंड देन यू हैव द डेरिवेटिव ऑफ दैट इन मल्टीप्लिकेशन और इन डिवीजन, देन हाउ टू फाइंड आउट योर इंटीग्रल। सो हियर वी गो फॉर द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने क्या करना होता है, एल्गोरिथम कहता है यू नीड टू पुट योर fx इज इक्वल्स टू t, देन यू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, आप उसको डिफरेंशिएट करिए। fx का डेरिवेटिव विल बी f डैश और t का डेरिवेटिव विल बी dt by dx, and accordingly you shift your dx on this side, fx dx equals to dt। और आपने अपना फंक्शन को, अपना वैल्यू अपने क्वेश्चन को ही चेंज करने देना होता है पूरे टी में, बिकॉज एज यू सी अर्लियर द फंक्शन वाज इन टर्म्स ऑफ x, नाउ यू नीड टू चेंज योर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। सो दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपको इस तरह का फंक्शन मिल सकता है, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का। सो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट पुट, आपको वो फंक्शन ढूंढना है जिसका जिसका डेरिवेटिव वहां पे प्रेजेंट है। हालांकि फंक्शंस तो 2-3 तो होंगे, लेकिन आपको वही उठाना है जिसका डेरिवेटिव वहां पे प्रेजेंट हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटीग्रल ऑफ fx। जैसे कि मैंने बोला कि इंटीग्रल ऑफ f डैश डिवाइड बाई fx, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल लिख लेती हूँ। फॉर एग्जांपल आई हैव द क्वेश्चन cos x upon sin x। सपोज आई हैव दिस क्वेश्चन, देन हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन। अगर आप इसको देखो, आप बोलोगे कि मैडम इसको वी कैन राइट इंटीग्रल ऑफ cot x, बट डू वी नो द इंटीग्रल ऑफ cot x। आप अगर फॉर्मूलाज की बात करें, मैंने जो भी फॉर्मूलाज लिखे थे इसमें कहीं मैंने cot x का फॉर्मूला लिखा है? नहीं लिखा, ठीक है। सो दिस वी कैन फाइंड आउट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड व्हाट इज दैट, तो आपने क्या करना है, अब इसमें अगर आप देखो साइन का डेरिवेटिव cos होता है, ठीक है, cos का डेरिवेटिव साइन होता है, बट आपने कौन सा लेना, आपने किसको टी पुट करा है? बोला कि मैम आपने बोला था कि कोई भी एक को उठा के इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो आप टी पुट कर देना। बट उसके लिए एक चीज देखनी है कि जब आप डेरिवेटिव पुट करोगे जो आंसर आएगा दैट आंसर यू नीड टू क्लब विद dx, ठीक है। कैसे, अब मैं पहले आपको गलत बताती हूँ फिर आपको सही बताऊंगी। सपोज मैंने किया पुट cos x इज इक्वल टू t, बिकॉज वी हैव द डेरिवेटिव ऑफ cos का भी, माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट विल बी एडजस्टेड ऑटोमेटिकली। तो cos x का अगर आपने इंटीग्रल किया देन यू विल हैव sin x, इसका इंटीग्रल sin x होता है, cos का सॉरी डिफरेंस, इसका डेरिवेटिव जो होता है cos माइनस sin x होता है, और t का हो जाएगा आपके पास dt by dx। नाउ यू नीड शिफ्ट ऑल द x टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो यू विल हैव माइनस sin x into dx equals to dt। सब x वालों को एक साइड रखना है और t वालों को एक साइड रखना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, कैन यू क्लब dx is in the numerator part and sin x in the denominator part, but here we are having that both are in multiplication, so can you club? No, we cannot club। तो हमने जो पुट किया था that was wrong, ठीक है। अब ऐसा तो जैसे बात समझ में है कि कौन से वाले को पुट करना है, हमें वो पुट करना है कि जिसका डेरिवेटिव को we can club with dx। so अब दूसरे वाला करके देखते हैं। now put your sin x is equals to t, so derivative of this will be cos x और t का डेरिवेटिव will be dt by dx, and then you need to just again shift on this side cos x dx equals to dt। now you see, can you club both? Yes, now we can club। so my question will change to, this was I equals, let's suppose, so in place of cos x dx I can write directly dt, and in place of sin t I can put the value of t। और अभी आपने देखा था कि dt by t का इंटीग्रल क्या होता है, this is log of t, और साथ में क्या लगेगा, डोंट फॉरगेट टू पुट योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि बच्चे मैंने बहुत देखा है कि वो आप लोग प्रॉब्लम नहीं लगाते हो, यू डिडक्ट योर हाफ मार्क फ्रॉम देयर बिकॉज ऑफ दिस ओनली सी। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्लियर है। अब क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ना है, बिकॉज इफ यू सी द क्वेश्चन वाज इन टर्म्स ऑफ x नॉट इन टर्म्स ऑफ t, तो आपने जो पुट किया था उसको वापस पुट करना, log of sin x plus t। दिस विल बी द आंसर फॉर इंटीग्रल ऑफ cot x।
क्लियर है बात कि हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन की fx है, आपके बोलेंगे fx ऊपर f डैश x नीचे, ठीक है, नहीं हो सकता वो, ठीक है। अगर आप बोलो कि इस फॉर्म को हम ऐसा भी तो बना सकते हैं मैम, इंटीग्रल ऑफ f डैश fx ऊपर और f डैश नीचे, नहीं बेटा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि f डैश के साथ आप dx को कैसे वो करोगे क्लब, ये वाला पॉसिबल होता है, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स इट इज पॉसिबल, नॉट ऑलवेज, इट इज पॉसिबल ओनली समटाइम्स, समटाइम्स और नॉट ऑलवेज, ऑलवेज नहीं होता, ऑलवेज नहीं कह सकते आप इसको, दिस इज समटाइम्स एप्लीकेबल, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं दूसरी टाइप। एक टाइप और होता है जो मैंने भी बताया था कि fx है साथ में और उसका इंटीग्रल इज डेरिवेटिव इज प्रेजेंट इन द मल्टीप्लिकेशन। लाइक वे सपोज यू हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, उसमें भी आपने क्या करना है, अपने सेम चीज करनी होती है, यू नीड टू पुट योर fx इज इक्वल्स टू t, ठीक है, यही करना होता है। तो सेम फिर डेरिवेटिव निकालिए, सारा dx एक साइड करिए, सारा dt एक साइड करिए, ठीक है। इफ यू सी दिस क्वेश्चन नाउ, देखिए अंडर रूट को अगर आप पुट करते हैं तो दिस विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। तो अभी तक देखिए ये वाला है और ये वाला है, अगर आप x माइनस वन को सपोज t ले भी लेते हैं, सपोज यू टेक x माइनस वन एज t, तो यू विल हैव व्हाट, वन आ जाएगा, dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा, उसका कोई यूज नहीं है। नाउ वी हैव द सेकंड फंक्शन इज दिस वन, इसको करके देखते हैं जरा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, डोंट टेक योर पावर्स प्लीज, वरना कभी नहीं हो पाएगा। सपोज आई एम टेकिंग दिस इक्वल्स टू t, तो अब मैं जब डेरिवेटिव निकालूंगी तो व्हाट विल बी डेरिवेटिव, इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विल बी 2x और इसका आ जाएगा 2, दिस विल गिव मी 0 और इट विल गिव मी dt, t का हो जाएगा dt by dx। नाउ यू शिफ्ट ऑल दैट dx on the, now if you take 2 common we can take from here x minus 1 and shift dx on the left hand side equals to dt, and if you see we have somehow these two terms can be clubbed, yes we can club, but we don't want these two, तो 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, x minus 1 of dx equals to what we have from here, we have dt divided by 2. So if you see the question will convert to now integral of, now this and this completely with dx will become dt and 1 by 2 is constant, so I'm taking that outside. Now what we are left with, the value of this we have put down what, t, so it will be t of 1 by 2 और ये फिर से क्या है पावर में 1 by 2, this is the power 1 by 2 and again 1 by 2. So what can we write? We can write this 1 by 2 integral of t to the power 1 by 4 dt. And this is nothing but what? This we can solve using polynomial rule. So 1 by 2 into क्या होता है, power will become प्लस ना, प्लस कर देते हैं, प्लस हो जाएगी 1 और वही चीज नीचे आएगी 1 by 4 plus 1 and साथ में लग जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। So what we are left with 1 by 2 of, this will give me what, this is nothing but what, this is 5 by 4. So this I can write 4 by 5 उल्टा करके और t to the power how much it is again 5 by 4 plus c, and if you simplify this will cancel out and you will have the answer as 2 by 5. Don't forget to put the value of t back, 2x square minus 2x plus 3 and to the power 5 by 4 plus c. This will be your final answer for this question. बात समझ में आ रही है? how to apply your substitution method, किसको पुट करना है, किसको पुट नहीं करना है, ठीक है। You need to put that function is equals to t, which derivative of that you can club with your dx. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं then आपने जो पुट किया है that is somehow wrong. So let's see now more questions. ये दोनों टाइप थी, अब थोड़ा कुछ questions देख लेते हैं. So you will feel like comfortable while solving. अब इसको देख के बताइए can we do this question? How can we do? अगर आप इसको देखें कि like suppose ये ऊपर वाला है, if I put ऊपर वाला numerator as t, तो यू विल हैव इसका इंटीग्रल सिर्फ 2 आएगा और dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, तो नो नीड होता है। बट इसको अगर हम नीचे वाले को देखें, अब या प्लीज डोंट थिंक कि हमेशा नीचे वाले को ही टी पुट करना है, प्लीज डोंट थिंक सो कि हमेशा नीचे वाले को ही पुट करना था। इट कैन बी इट, व्हाट यू नीड टू डू हियर अगेन, अगर बट मैं इसको देखूं x स्क्वायर प्लस, देख के ना आपको व्हेन यू विल हैव इनफ प्रैक्टिस आपको सिर्फ देख के पता चल जाएंगी चीजें। इफ यू पुट दिस इज इक्वल्स टू t, व्हेनेवर यू हैव इंटीग्रल क्वेश्चन, प्लीज सबसे पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करके देखना। अगर इट कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग नॉर्मल इंटीग्रेशन, पहले तो नॉर्मल देखना है, नहीं होता है देन यू गो फॉर सब्स्टिट्यूशन दैट मेथड्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन, देन सब्सिक्वेंटली हम जो करते जाएंगे। नाउ उसके बाद आपने इसको करना होता है डिफरेंशिएट। नाउ व्हाट यू नीड टू डिफरेंशिएट, क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल विल बी 2x एंड यू विल हैव 3x का हो जाएगा सिर्फ 3, दैट विल बी 0, यू विल हैव dt डिवाइडेड बाय dx लिया। द नेक्स्ट थिंग आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू क्लब योर dx विद द in derivative of the given function you have, like the function you have taken as equals to t. Now if you see this complete term, this with the dx has become completely what,
दिस हैज कन्वर्टेड टू इंटीग्रल ऑफ dt ओनली। और नीचे वाले को आपने क्या लिया था, दिस यू हैव कंप्लीटली टेकन एज t। अब आप बोलोगे मैम आपने तो इसको यहाँ तक ही तो किया है t को। देखो इफ यू हैव इन एडिशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन सम कांस्टेंट टर्म, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 0 हो जाना है तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब x स्क्वायर प्लस 7 लेते हो तो आपको तकलीफ होगी बाद में निकालने में, आपको t माइनस 7 कुछ पुट करना पड़ेगा। गलत वो भी नहीं है, उससे भी आपका आंसर सेम ही आने वाला, आंसर कुछ डिफरेंट कभी नहीं आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी dt बाई t और ये हो जाएगा log ऑफ t अगेन फिर से और प्लस c आंसर आ जाएगा। और डोंट फॉरगेट टू पुट द वैल्यू ऑफ t बैक। मैं बार बार वो बोलती हूँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, बिकॉज आई हैव सीन द मेनी टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स में कॉपी चेक करते हुए भी कि बच्चे क्या करते हैं, इसको c को लगाना भूल जाते हैं या वैल्यू रिवर्ट बैक t पुट करना भूल जाते हैं। एंड दैट इज स्पेशली व्हेन यू हैव लाइक एक ही इंटीग्रेशन में दो तीन बार आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज सम एग्जांपल्स। नाउ मूव ऑन टू वन मोर एग्जांपल। देखिए हमेशा अंडर रूट वाले को टी पुट करिएगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट वाले को टी पुट करने से क्या होगा, अब वैसे भी जब उसका इंटीग्रल डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसको dx के साथ तो क्लब नहीं कर पाएंगे बिकॉज दैट इज इन रूट। तो हमेशा आपने क्या करना है, तो आपको रूट वाले को ही टी पुट करना होता है। सो पुट योर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। दिस विल गिव मी व्हाट, इंटीग्रल डेरिवेटिव दिस विल बी 2x और x का विल बी 1, ये 0 इज इक्वल टू dt by dx। The substitution method is very simple. So you'll have 2x plus 1. Just shift on the left hand side dx equals to dt. Then your question will becomes integral of. अब आप देखेंगे कि मैम यहाँ पे तो ये नहीं है, you have to 4x plus 2. बेटा if I take 2 common from here तो क्या ये 2x plus 1 नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा. So twice into now this combined with the dx you will have dt here. 2 मैंने बाहर रखे क्योंकि कांस्टेंट है and under root of you have just t. So you will have twice of integral of dt root t dt. और इसका integral what will be that? What will be that? 2 into what you need to do? Just you need to add plus. It was 1 by 2 plus 1 and in denominator also it will be 1 by 2 plus 1 and plus c is the most important thing. Twice into it will be 3 power 3 by 2 और यहाँ पे भी it will be 3 और 2 को shift कर देते हैं ऊपर plus c. So answer will be 4 by 3 और t का value was x square plus x plus 1 power 3 by 2 plus c. I hope you are comfortable how we are solving the questions and trust me this is very simple method, very simple method. As we will move further तो आपको चीजें शायद थोड़ी अलग लगेंगी but ये वाला method बहुत simple है, ठीक है। So again before proceeding to the next question, if you like the video please subscribe the channel and share with your friends और उनको समझाइए कि थोड़ा यहाँ से पढ़ाई करें, थोड़ा रिविजन भी आप लोगों को अच्छे से हो जाएगा। और मेन मोटिव है कि बच्चों को चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और मुझे सब्सक्राइब करके थोड़ा क्या करें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और इफ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी आल्सो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम सीकेंड स्क्वायर को टी पुट करें तो कुछ नहीं होने वाला, बट 3 को अगर करेंगे तो चलो बात की बात है। tan x का व्हाट इज डेरिवेटिव? tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर होता है, मतलब हम कर सकते हैं इसको, हम क्या कर सकते हैं टी। जो भी मैंने कहा था कि अगर प्लस माइनस में साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू उसको पूरे को कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस विल बी सीकेंड स्क्वायर x और टी का हो जाएगा dt by dx। देन सीकेंड स्क्वायर x into dx equals to dt। तो क्वेश्चन क्या बनता है आपका? क्वेश्चन बन जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ, देखो ये आफ्टर क्लबिंग दीज टू आई एम गेटिंग द वैल्यू एज dt और नीचे से आ रहा है t और इसका आंसर हो जाएगा log of t plus c और log of t का वैल्यू वी कैन पुट एज 3 plus tan x plus c। It is how simple it was, how simple. Just you need to put the value as, first आपको substitute करना है, you need to find out its derivative, you convert your question into t and solve. I hope it is clear to everyone. Now move on to this question. Although this question is not of substitution, but मैंने फिर भी डाल दिया। This is basic question. इसको देख के बच्चे बोलते करें कैसे। देखिए आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है। log e अगर है तो वो 1 होता है और e की पावर अगर log है तो भी वो 1 होता है, ठीक है। So whenever you have log e that is also equals to 1 and if you have e to the power log that is also equals to 1 and these two concepts are going to like very beneficial for you in terms of integration, especially this one when you are solving the differential equations part, ठीक है। चलिए इसको अगर मैं सिंपली पहले फर्स्ट एक टर्म ले लेती हूँ, सपोज आई एम टेकिंग दिस वन e5
log ex. Have you studied the property of log? Log m, and if you have, you shift your power in the front and this can be written as n आगे and log m. This is the property. So I'll do the same property here. It is already in the front, तो मैं इसको power में ले जाती हूँ. Now you'll have e log e x to the power 5. और अभी मैंने आपको बोला था e power log अगर है, so this was the x, not x. If you have e to the power log, then it will always be 1. 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास? You are just left with x square. x to the power 5. log नीचे e है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि log a और b अगर आपके पास है, you can write is log b divided by log a. ठीक है, जो नीचे है, क्योंकि अगर यहाँ पे नीचे e है भी तो उसको डिवाइड बाय ये लिख लो log e का वैल्यू 1 होता है, so still we have x to the power 5. ठीक है, इसलिए अगर बेस e है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. बात समझ में क्या किया हमने? पावर को ऊपर लेके गए, so e to the power log will become 1 और जो सिर्फ फंक्शन है वो बच जाएगा मेरे पास x to the power 5. So if I simplify this will be nothing but x to the power 5 माइनस, अब इसको देख के बता दो फटाफट से क्या हो जाएगा, x to the power 4 जस्ट, जो पावर वो रह जाएगी. यहाँ पे कितना हो जाएगा इसके साथ x क्यूब, दिस विल बी x स्क्वायर. देखिए, हालांकि दिस क्वेश्चन वाज नॉट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मैंने फिर भी डाल दिया. चलिए, नाउ व्हाट टू सॉल्व. नाउ व्हाट कैन वी टेक कॉमन फ्रॉम हियर? x power 4, वी आर लेफ्ट विद x minus 1 नीचे से, and here you have x square of x minus 1 again, and dx. You can simplify these two with x square, you can cancel out, and we are just left with the integral of x square dx. और ये आपको करना आता है. This is nothing but x cube plus divided by 3 plus c. This will be the answer for this question. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट क्या, मतलब बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं स्टार्टिंग में. अभी हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कंफर्टेबल हो, but for this you need these properties of log. आपको लॉग की प्रॉपर्टीज आते हैं, then you can easily solve. क्लियर है बात? चलिए फटाफट से बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ. ज्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, छोटा छोटा वीडियो प्लस में समझिए कि होता गया. एक एक मेथड को एक एक वीडियो में समझाऊंगी. देखिए, इस क्वेश्चन को देख के भी बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं. परेशान होने की बात ही नहीं. जब इस तरह से दिखे ना, उसको हमेशा पावर में लेके जाइए. तो e to the power log of x क्यूब, और यहाँ पे अगर आप देखें पावर क्या है, -1 में है, तो उसको पावर बना लीजिए पॉजिटिव, नीचे लाके लॉस ऑफ एक्सपोनेंट सबको आते हैं. Now we have converted the question as this will become 1. Now this has become x cube divided by x to the power 4 plus 1 dx. देख रहे हो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन को. सिर्फ प्रॉपर्टी क्या हमने प्रॉपर्टी लगाई और एक्सपोनेंट लो लगा के माइनस पावर को प्लस बना दिया. Now what do we have derivative of any function present out here? Yes. अगर हमने डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का लिया तो इट विल बी x क्यूब का लिया तो इट विल बी 3x स्क्वायर, एंड x स्क्वायर वी डोंट हैव. बट इफ वी टेक दिस x to the power 4 plus 1 as t, then derivative of this will be 4x cube dx equals to dt. मैंने सीधा लिख दे रही हूँ इस बार. Now we need only this one. We need only x cube dx. तो हमने क्या करना है यहाँ पे, जस्ट आपने लिखना है x cube dx और 4 को इधर शिफ्ट कर देना dt डिवाइड बाई 4. So now convert your question, it will become dt. 1 by 4 को I'm writing outside and नीचे it was completely t. So answer will be 1 by 4 log of t plus c. And don't forget to put the value of t back again, x to the power 4 plus 1 and plus c. This will be the final answer for this question. ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, उसको देखिए ध्यान से, उसको घूरिए. उसको घूरोगे तो अपने आप ही हो जाएगा, डर जाएगा बेचारा तुमसे. ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से इस लास्ट क्वेश्चन की. ये दिस वाज लास्ट क्वेश्चन. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर आप रूट एक्स को सपोज यू पुट रूट एक्स एज टी, तो रूट एक्स का प्लस 1 में है तो मैं प्लस 1 साथ में ले लेती हूँ. इफ यू पुट दिस इज इक्वल टू टी, तो व्हाट विल हैव, यू हैव डेरिवेटिव दिस इज 1 बाय रूट. देखिए, इंटीग्रेशन करने के लिए योर कॉन्सेप्ट फॉर डिफरेंशिएशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. आपको सबका डेरिवेटिव आना चाहिए एकदम से. ठीक है, नाउ इफ यू सी वी कैन क्लब दीज टू, और इफ यू कैन क्लब दीज टू इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ये हमारे पास dx अपॉन दिस, सो दिस वी कैन राइट एज dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाए बिकॉज वी डोंट वांट दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ dt, तो नीचे क्या आ जाएगा, इट विल बी t ओनली. देखिए बहुत सिंपल था. सो दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ log of t plus c. And this will become twice of log of root x plus 1 plus c.
This will be your final answer for this question. So this was the concept of substitution method of integration, कि हमने चीजों को सब्स्टिट्यूट करके कैसे फाइंड आउट करना है. अगर आप देखो क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं. वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस हियर. मेरे एक बच्चे ने पूछा था इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स. प्लीज टेल मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. इसका आंसर क्या होगा? इफ यू कैन डू, दिस इज क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है, आप इसको करके बताइए मुझे इसका आंसर क्या आएगा. अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स डीएक्स. हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? मैं तो आंसर बता ही दूंगी, पहले आप थोड़ा ट्राई करिए. और इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक करिए चीजों को. चलिए लाइक कर देना प्लीज. लाइक डिसलाइक तो कर देना यार, डिसलाइक ही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. ठीक है, अच्छा लगे तो करिए, नहीं अच्छा लगे तो मत करिए, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं. ठीक है, तो कंटिन्यू करिए अपनी पढ़ाई को, इस मेथड को करिए. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट मेथड के साथ मिलेंगे.